करते हैं. Yes, a very, very good afternoon to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Valuation of Goodwill. This chapter we had started yesterday, wherein we had discussed the various methods for valuation of goodwill, the various methods for valuation of goodwill, and we had also solved three questions on it. In today's class, we are going to solve three more exam questions on valuation of goodwill and complete this chapter. Today's class will also be taken in two sessions, one now and the other one at 6:30 p.m. Right. So, starting the class with problem 6. प्रॉब्लम 6 का एक बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं. जैसे जो प्रॉफिट्स अपने यूज करेंगे, जो प्रॉफिट्स अपने यूज करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, जैसे लास्ट अपने डिस्कस किए थे, गुडविल का सीधा इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट्स पर पड़ता है. दैट इज व्हाई प्रॉफिट्स आर यूज्ड एज अ बेस फॉर एनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. दैट इज वाई किसी भी मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में प्रॉफिट्स को हमेशा यूज किया जाता है, बिकॉज गुडविल का सीधा इम्पैक्ट बिजनेस के प्रॉफिट्स पर पड़ता है. राइट. अब जो प्रॉफिट्स अपने यूज करेंगे, दैट इज द प्रॉफिट्स विच इज अर्नड फॉर ऑल दोज हु हैव एम्प्लॉयड देयर कैपिटल इन द बिजनेस. जो प्रॉफिट्स अपने यूज करेंगे, दैट इज द प्रॉफिट अर्नड फॉर ऑल दोज हु हैव एम्प्लॉयड देयर कैपिटल इनटू द बिजनेस. हु हैव एम्प्लॉयड यानी इन्वेस्टेड their capital into the business of the company, it is the shareholders and the lenders. The shareholders have invested equity share capital, preference share capital, reserves and surplus, and the lenders have given debentures and loan to the company. Right. So capital employed means the amount of capital which is invested in the business of the company by the shareholders and by the lenders. By the shareholders and by the lenders. So capital is employed, invested in the business of the company by the shareholders and lenders. So the profit that we use to value the goodwill, to calculate the valuation of goodwill, to calculate the amount of value of goodwill, is the profit the company earns for all these equity shareholders, preference shareholders, lenders, and debenture holders. तो जो प्रॉफिट अपने गुडविल के वैल्यूएशन के लिए यूज करेंगे, ये वो प्रॉफिट होगा जो कि कंपनी इन सब लोगों के लिए कमाता है. दैट इज लेंडर्स के लिए कमाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कमाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाता है. राइट. So that profit we are going to use to calculate the amount of goodwill, the value of goodwill. So profit which is earned by the company for all those who have employed their capital into the business will be used for the valuation of goodwill. कहने का सिंपल सा मतलब है, अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ठीक टैक्स माइनस करने से पहले का प्रॉफिट्स दिया हुआ है. ठीक टैक्स माइनस करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस किया हुआ है. ये वाले प्रॉफिट में इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस किया हुआ है, बिकॉज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट करने के लिए अपने इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस करते हैं. एंड इंटरेस्ट इज द इनकम, interest is the income or the return to the lenders. Interest is the income or the return
इंटरेस्ट इज द इनकम और रिटर्न टू द लेंडर्स। वो इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इज द इनकम और रिटर्न टू द लेंडर्स एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट करते वक्त वो इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, राइट। और अपने को प्रॉफिट कौन सा चाहिए? द प्रॉफिट विच इज अर्नड फॉर ऑल द पीपल हु हैव एम्प्लॉयड their capital into the business of the company। यानी प्रॉफिट अर्न फॉर द debenture holders, preference shareholders and equity shareholders all together। So profit before tax is calculated after minusing interest on debentures और interest on loan। interest का expense माइनस करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। yes or no? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अपने को क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? वी नीड टू डू व्हाट? हु कैन टेल मी? Who can tell me we need to do what? We need to add back the amount of interest. We need to add back the amount of interest. We need to add back the amount of interest. Thank you so much, Ishika and Yuvraj. Thank you so much. ठीक है, we need to add back the amount of interest। तो अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमेशा इंटरेस्ट का एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट के अमाउंट में हमेशा इंटरेस्ट का एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे, राइट। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अपने क्या करेंगे? इंटरेस्ट के एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट का एक्सपेंस हमेशा ऐड बैक होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आया हुआ इनकम। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कंपनी ने खुद के बिजनेस में नहीं लगाया, किसी और के बिजनेस में लगाया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीदता हूं, तो वो शेयर्स इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फॉर अनूप क्लासेस। अनूप क्लासेस इज माय ओन एंटिटी, ठीक है। अनूप क्लासेस अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीदता है, so that is non-trade investment for Anup classes। Yani this amount of money Anup classes has not invested in its own business, it has invested into the shares of Reliance Industries, in the business of Reliance Industries। So that is non-trade investment। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है या इनकम आता है, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इनकम। तो ये तो खुद के बिजनेस का इनकम नहीं है, ये किसी और के बिजनेस का इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो मेरे को डिविडेंड्स मिलता है, दैट इज नॉन ट्रेड इनकम फॉर मी। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनकम मेरे को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट्स मेरे को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अनूप क्लासेस को डिविडेंड्स मिला है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इनकम ऑफ द बिजनेस, इट इज इनकम ऑफ समबडी एल्सेस बिजनेस। तो जब अपने कंपनी का गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, and we are using the profits for the valuation of goodwill, and that profits includes non-trade income, that non-trade income needs to be excluded, because we need to take those profits which is exclusively of the business of the company. For the purpose of valuation of goodwill, we need to take only those profits which are exclusively for the purpose of goodwill, which are exclusively for the purpose of business of the company, sorry, which are exclusively for the business of the company, which is exclusively of the business of the company. We need to take only those profits which are exclusively of the business of the company.
not of the business of somebody else. So non-trade income is income of somebody else's का business, not of the business of the company. So जब अपने गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, कंपनी के गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो सिर्फ कंपनी के बिजनेस का प्रॉफिट्स को ही कंसिडर करेंगे और कोई प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करेंगे. तो नॉन ट्रेड इनकम को नहीं लेना है. नॉन ट्रेड इनकम प्रॉफिट्स में ऐड किया हुआ रहता है, तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए अपने क्या करेंगे, नॉन ट्रेड इनकम को माइनस कर देंगे. सो गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉफिट्स अपने कंसिडर करेंगे, that is the profits which is exclusively of the business of the company. तो इसलिए अपने नॉन ट्रेड इनकम को एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे, और इसके साथ जैसे पहले डिस्कस किया था डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वी गेट आफ्टर डूइंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स will be considered for the purpose of valuation of goodwill. आई बात समझ में, yes or no? ठीक है, ओके. अब इधर में क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम 6 में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15 लाख, यानी बिजनेस में 15 लाख रुपया लगा हुआ है. Normal rate of profit is equal to 10%. Normal rate of profit is equal to 10%. Net profit before tax, tax का rate is 30%. 2022, 21, 20, 19 and 18 के लिए दिया हुआ है. Are the profits showing any trend? मतलब increasing, increasing, increasing or decreasing, decreasing, decreasing. Are the profits showing any trend? Answer is no. कभी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कभी प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दे रहा है. कभी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कभी प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दे रहा है. Right, the profits are not showing any trend. So we'll take simple average of the profits. So we'll take simple average of the profits. ठीक है, बट प्रॉफिट्स का एवरेज निकालने से पहले अपने क्या करेंगे, नॉन ट्रेड प्रॉफिट्स का एवरेज निकालने के बाद भी कर सकते हैं. नॉन ट्रेड इनकम को माइनस करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे. देखो ये जो नॉन ट्रेड इनकम है और डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये हर साल प्रॉफिट्स में नॉन ट्रेड इनकम ऐड हुआ है और डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस हुआ है. तो अपने एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इन 5 साल का एक सिंपल एवरेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे. इन 5 साल का एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे. ये 5 साल का एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे, और वो एवरेज प्रॉफिट में से नॉन ट्रेड इनकम को माइनस कर देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देंगे. एवरेज निकालने के बाद क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नॉन ट्रेड इनकम और डिबेंचर इंटरेस्ट हर साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है. लिखा हुआ है ना, नॉन ट्रेड इनकम एंड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. यानी ये 5 साल में नॉन ट्रेड इनकम 10,000 ऐड होके रखा हुआ है एंड डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000 माइनस होके रखा हुआ है. तो एक एक साल में, एक एक साल, हर एक साल में एडलेस करने से अच्छा ये होगा कि ये 5 साल का सबसे पहले अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल ले. इन 5 साल का सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल ले, फिर उसमें से नॉन ट्रेड इनकम क्या करे, ऐड करें या माइनस करें, माइनस करेंगे, और डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे. तो आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स रेट माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देन वी विल मूव अहेड विद द calculation of the value of goodwill as per capitalization of average profits method. ठीक है,
Yes, no. Calculation of average profit before tax. Calculation of average profit before tax. सर आप तो आफ्टर लिखे हैं। नहीं नहीं, आफ्टर टैक्स होगा, सॉरी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या है, 2,75,000 प्लस 3,00,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,20,000 divided by 5. 2,75,000 plus 3,00,000 plus 2,60,000 plus 2,80,000 plus 2,20,000, the whole divided by 5 is equal to 2,67,000. यही आ रहा है ना आप लोग का भी? हाँ या ना बोलो। 2,67,000। इसमें अपने क्या करेंगे, लेस नॉन ट्रेड इनकम, 10,000 का माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना, 20,000, this is adjusted profit before tax, less tax at the rate of 30%। पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों निकाला, समझ में आया ना? पहले मैंने एवरेज क्यों निकाला, बिकॉज हर साल के इनकम में नॉन ट्रेड इनकम ऐड किया हुआ है और डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, तो ये हर साल के इनकम में सेम ट्रीटमेंट है। इसलिए पहले पांचों साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया, फिर एक ही बार में लेस नॉन ट्रेड इनकम एंड एड बैक डिबेंचर इंटरेस्ट, बिकॉज पांचों साल एक ही ट्रीटमेंट हुआ है। 2,77,000 का 30%, 2,77,000 का 30% इज 83,100।
1,93,900. This is adjusted profit आफ्टर टैक्स. इसी को अपने यूज करेंगे गुडविल कैलकुलेशन के लिए. adjusted एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, आफ्टर टैक्स. adjusted average profit before tax, adjusted average profit after tax. So average profit कितना निकला है? 1,93,900. ठीक है. अपने को कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है. अब युवराज आप मेरे को बताओ कि अगर बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, सपोज बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, एंड बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट में कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा, कोई भी जिसका गुडविल है जिसका गुडविल नहीं है, कोई भी 10% कमा लेता है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 10%. सो बिजनेस का कमाई अगर 1 लाख है और बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें लोग 10% कमा लेते हैं, तो बताओ आपने बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है? बोलो. सर और एक बार रिपीट कीजिए प्लीज. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. सपोज आप बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाते हो, ठीक है, एंड बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी बिजनेस में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से आमतौर पर लोग 10% कमा ही लेते हैं. 10% कमा ही लेते हैं. तो अगर आप बिजनेस से 1 लाख रुपया कमा रहे हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया होगा? सर 10 लाख. 10 लाख इन्वेस्ट किया होगा. तो वही मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,93,900 है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो बताओ ये बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा? 19,39,000. 19,39,000 कैसे निकाला? 1,93,900 डिवाइडेड बाय 10%. 10 into 100. हाँ. यस, दिस इज नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी जितना आप कमा रहे हो बिजनेस से, जितना आप कमा रहे हो बिजनेस से, कितना कमा रहे हो? 1,93,900. उस हिसाब से नॉर्मल, उस हिसाब से आपके बिजनेस में 19,39,000 इन्वेस्ट हुआ होना चाहिए. उस हिसाब से आपके बिजनेस में 19,39,000 इन्वेस्ट हुआ होना चाहिए. दिस इज नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस इज नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब इतना इन्वेस्ट हुआ होना चाहिए, इतना इन्वेस्ट हुआ होना चाहिए. बट आपके बिजनेस में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड? देखो कितना है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज 15 लाख. यानी आप 15 लाख इन्वेस्ट करके उतना कमा रहे हैं जितना बाकी लोग 19,39,000 इन्वेस्ट करके कमाते. अगर 1,39,000, अगर 1,39,100 कमाना है, 1,90,000 कितना है? अगर 1,93,900 कमाना है, अगर 1,93,900 कमाना है, तो 19,39,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बट क्या आपके बिजनेस ने 19,39,000 इन्वेस्ट किया है? आंसर इज नो. उसने सिर्फ 15 लाख इन्वेस्ट किया है. तो बिजनेस 15 लाख इन्वेस्ट करके उतना कमा रहा है जितना बाकी लोगों को
19,39,000 इन्वेस्ट करके कमाते। समझ में आया? आपकी बिजनेस का कमाई कितना है? 1,93,900। 1,93,900 के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 19,39,000। बट आपके बिजनेस ने कितना इन्वेस्ट किया? 15 लाख रुपया। तो आप 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करके उतना कमा रहे हैं जितना बाकी लोग 19,39,000 इन्वेस्ट करके कमाते। बिकॉज अगर 1,93,900 कमाना है तो 19,39,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आपने तो 15 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपने जो कम इन्वेस्ट किया हुआ है, कमती इन्वेस्टमेंट करके आप, यस, कमती इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा कमा रहे हैं। रीजन क्या है इसका? गुडविल। रीजन क्या है इसका? गुडविल। सो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15 lakh, which is normal capital employed minus actual capital employed. 19,39,000 सर इस गुडविल को ही क्या हिडन गुडविल बोलता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं बोलता। ठीक है। यस सर। ओके, नाउ इसमें मूविंग कुछ है। फॉर्मूला जैसा लगा ही नहीं सर। फॉर्मूला जैसा लगा ही नहीं ना? फिर मैंने बोला ना, एक्सप्लेन करके मैं समझा दूंगा आपको। अगर आप लास्ट क्लास अटेंड नहीं भी किया तो कोई दिक्कत का बात नहीं, एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। इसके बाद आप फर्स्ट क्लास का वीडियो देखोगे तो आपको एकदम बच्चा वाला फीलिंग आएगा। अभी प्रॉब्लम 5 करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक चीज बोला था, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? It is the amount of money invested by the shareholders and the lenders. Capital employed, yani capital invested in the business. Who invested money into the business? The shareholders and the lenders. Shareholders invest equity share capital, preference share capital plus reserves and surplus. And lenders, debentures and loan. ठीक है? So these are the investors of the business of the company. ठीक है? Right. अब yes. From the following information, calculate the value of goodwill on 31st March 2022. Equity share capital 4 लाख रुपया, 10% preference share capital, 10% preference share capital 1 लाख रुपया, surplus 90,000, 9% debentures 1 लाख रुपया, 9% debentures 1 लाख रुपया, डिबेंचर फंड 60,000, क्रेडिटर्स 70,000। अब मेरे को बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने के लिए कौन सा आइटम्स को नहीं लेना है? ये जितने भी सारे आइटम्स अपने रीड किए, उनमें से कौन सा आइटम्स को नहीं लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने के लिए? एक हो गया, डिबेंचर फंड को नहीं लेना है, बिकॉज डिबेंचर फंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसको तो अपने फिक्स्ड एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करके दिखाते हैं। उसको तो अपने बैलेंस शीट में एसेट के साइड में फिक्स्ड एसेट से माइनस करके दिखाते हैं। दूसरा क्रेडिटर्स, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या लेना है? इक्विटी शेयर कैपिटल का 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 1 लाख,
सरप्लस का 90,000, डिबेंचर्स का 1 लाख। ठीक है, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, देन क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट इज 90,000 more than the book value. This is what? Revaluation surplus. This is what? A revaluation surplus. Market value of asset is 90,000 more than the book value. This is what? Revaluation surplus. Surplus का ही तो पार्ट है ये। रिजर्व्स एंड सरप्लस को अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में लेते हैं या नहीं? लेते हैं। सो दिस इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो इसको लेना है। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स इज 90,000 मोर देन द बुक वैल्यू। असेट का जितना बुक वैल्यू है उससे 90,000 ज्यादा उसका मार्केट में दाम है, तो इट इज अ सरप्लस 90,000 का। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में कैलकुलेट करते टाइम इसको अपने लेंगे। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन असेट्स, non-trade investments included in assets, non-trade investments, non-trade investments, non-trade investments मतलब क्या? वो पैसा जो कि कंपनी ने खुद के बिजनेस में नहीं, किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वो पैसा जो कंपनी ने खुद के बिजनेस में नहीं, किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये पैसा तो खुद के बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। दिस इज नॉट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन समबडी एल्सेस बिजनेस। तो इसको अपने क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम क्या करें, ऐड करें या माइनस करें? फटाफट जवाब आना चाहिए। ऐड करें या माइनस करें? माइनस करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम इसको माइनस करेंगे, तो ये अपने माइनस करेंगे, ये माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर्स अपने लेंगे, डेप्रिसिएशन फंड और क्रेडिटर्स नहीं लेंगे। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर इज नॉट somebody from whom I'm taking a loan. So creditors is a current liability जिससे अपने गुड्स उधार में परचेज किए हैं। सो क्रेडिटर इज अ करेंट लाइबिलिटी, तो उसको अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेते, वो अपना पैसा बिजनेस में नहीं लगाया है। ठीक है, लेंडर्स अपना पैसा बिजनेस में लगाए हैं। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज 90,000 मोर देन द बुक वैल्यू, दिस इज रिवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस का ही पार्ट है ये तो। ठीक है, तो इसको अपने कंसिडर करेंगे। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इन somebody else's बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम अपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना है, और नॉन ट्रेड इनकम को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना है, हटा देना है। और नॉन ट्रेड इनकम जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से निकल कर आता है, वो नॉन ट्रेड इनकम को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस कर देना है। यानी नॉन ट्रेड का जहां जहां इंपैक्ट है वहां वहां उसको एक्सक्लूड कर देना है। नॉन ट्रेड का जहां जहां इंपैक्ट है उसको वहां वहां से एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास मैंने बोला था हाइलाइटर लेकर बैठना, तो आप लोगों ने ये वाले सम में क्या हाईलाइट करना है? आप लोगों को ये वाले सम जो पिछला सम था उसमें क्या हाईलाइट करना है? ये दो चीज हाईलाइट करना है। ठीक है, ये दो चीज हाईलाइट करना है।
मैंने बोला था कि जो छोटा छोटा एडजस्टमेंट्स है गुडविल के वैल्यूएशन में, वो अपने सम्स के थ्रू समझेंगे और उसको सॉल्यूशन में करते वक्त अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाएंगे। तो बेटर है हाइलाइटर यूज करके हाईलाइट कर दो, जैसे मैंने हाईलाइट किया है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 का अपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, फिर उसको आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, सरप्लस 90,000, 9% डिबेंचर्स 1 लाख, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना था, 90,000, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर देन बुक वैल्यू। 7,80,000 लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 6,50,000। इसमें अपने एक नोट भी डालेंगे, नोट डेप्रिसिएशन फंड एंड क्रेडिटर्स will not be considered to calculate capital employed। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड अपना निकल गया, राइट। यस सर। नेक्स्ट। सो यहां तक अपने सारा इंफॉर्मेशन को पढ़कर ट्रीटमेंट कर लिए, अब आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर 40% टैक्स वर 1920 में 84,000, 2021 में 1,08,000, 21-22 में 1,05,000। कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? एज सच कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। उल्टा क्वेश्चन में बोला हुआ भी है टेक सिंपल एवरेज, तो वेट ट्रेंड होता भी तो अपने वेटेड एवरेज नहीं लेते, सिंपल एवरेज ही लेते। ट्रेंड होता भी तो अपने वेटेड एवरेज नहीं लेते, सिंपल एवरेज लेते, तो अपने को सिंपल एवरेज लेना है। ठीक है, राइट। सो ये प्रॉफिट आफ्टर 40% टैक्स दिया हुआ है, ये प्रॉफिट आफ्टर 40% टैक्स दिया हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये बताओ अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं या नहीं? याद करो, जब मैंने टैक्सेशन 1 में आप लोग को बिजनेस इनकम पढ़ाया था तो उसमें बताया था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, यानी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने से पहले इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, यानी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने से पहले इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। इंटरेस्ट का बेनिफिट टैक्सेशन के लिए मिलता है, यानी इंटरेस्ट का एक्सपेंस को माइनस करने के लिए अलाउड है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिसन टू मी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट को माइनस किया हुआ है, और अपने को इंटरेस्ट को माइनस नहीं करने देना है। अपने को इंटरेस्ट को माइनस करने नहीं देना है। क्यों नहीं करने देना है? बिकॉज वी विल कंसिडर दैट प्रॉफिट विच इज अर्न फॉर all those who have employed their capital into the business। अपने को इंटरेस्ट माइनस करने नहीं देना है। अपने को इंटरेस्ट माइनस करने क्यों नहीं देना है? बिकॉज गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए वी विल कंसिडर दैट प्रॉफिट which is earned for all those who have invested their money into the business, and they are the shareholders and the lenders। So shareholders lenders दोनों के लिए मिलाकर कंपनी ने जो कमाया है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को अपने कंसिडर करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। राइट, वो प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे अपने गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। इसलिए इंटरेस्ट को खर्चा मानकर माइनस करना नहीं है अपने को गुडविल का कैलकुलेशन करते टाइम। समझ में आ रहा है? गुडविल की कैलकुलेशन करते टाइम हमेशा इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। अगर माइनस किया हुआ है तो उसको ऐड बैक करेंगे अपने, अगर माइनस किया हुआ है तो उसको ऐड बैक करेंगे अपने, बिकॉज गुडविल जो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं वो पूरे कंपनी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपनी में किसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, एम्प्लॉय किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड किसने किया है? शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स ने। तो शेयर होल्डर्स लेंडर्स ये दोनों के लिए मिलाकर कंपनी जो कमाई करता है, प्रॉफिट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ गुडविल, वो प्रॉफिट को अपने को कंसिडर करना है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। सो वी नीड टू कंसिडर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये बात समझ में आया? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कंप्यूट हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कंप्यूट हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस 40% इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट करने के लिए इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस किया होगा, बिकॉज ये लॉ अलाउ करता है। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए इंटरेस्ट के एक्सपेंस को माइनस किया करते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर अपने टैक्स निकाला है तो उस पर इंटरेस्ट माइनस किया होगा, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया होगा। तो वो इंटरेस्ट को अभी अपने को माइनस कर नहीं करने देना है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, एड बैक करना है। एड इंटरेस्ट किससे माइनस किया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस किया हुआ है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस किया हुआ है। इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस किया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस किया हुआ है। तो अपने इंटरेस्ट को एड बैक करेंगे तो किससे करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करेंगे। इंटरेस्ट का एक्सपेंस कब माइनस किया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट करते वक्त माइनस किया हुआ है। तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस अपने एड बैक करने की बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक करेंगे, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक करेंगे। पिछला क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, ये वाले क्वेश्चन में अपने को चालाकी से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और अपने को इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक करना है, बिकॉज इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस किया हुआ होता है। फिर अपने टैक्स निकालते हैं, तब जाकर आता है पैट, टैक्स को माइनस करने के बाद। समझ में आया। तो अपने को सबसे पहले ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू पैट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स कितना है, 40%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% माइनस किए, टैक्स निकला, माइनस किए, आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज व्हाट, 60% ऑफ पीबीटी। If tax is 40% of PBT, then profit after tax is 60% of PBT. If tax is 40% of PBT, then profit after tax is 60% of PBT. ये बात सबको पल्ले पड़ी, सबको समझ में आया, हाँ ना। तो सबसे पहले अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। चलो आओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तीनों साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। एक बार के लिए आफ्टर टैक्स लिख रहा हूं, बिकॉज बाद में तो टैक्स का एक्सपेंस माइनस करना ही होगा ना। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कौन सा साल है, 2019, 20, 2020, 21, 2021, 22। अच्छा ये टेबल बना लिया क्या आप लोग, अच्छा टेबल के नीचे, ठीक है, लिखा, लिखो 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 लिखो, टेबल बना लिया तो लिखो।
आप लोग 7 to 8 लाइंस, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लाइंस का जगह छोड़कर, 7 to 8 लाइंस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 to 8 लाइंस का जगह छोड़कर नोट करो, if tax is 40% of PBT, then PAT is 60% of PBT. मतलब this is 60% of PBT. So note में लिखना, so therefore PBT is equal to PAT divided by 60%. PAT is 60% of PBT ना, टैक्स इज 40% ऑफ पीबीटी, 40% को माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 60%, 60% यानी पैट इज 60% ऑफ पीबीटी, टैक्स इज 60% ऑफ पीबीटी, टैक्स PAT is 60% of PBT, PAT is equal to 60% of PBT, so PAT by 60% is equal to PBT. समझ में आया? हाँ या ना? ना या हाँ? अब इसमें अपने इंटरेस्ट ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डन? डन, yes or no? चैट बॉक्स में y for yes and for no, then move ahead. चैट बॉक्स में y for yes and for no. चलो डन। ओके, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, नॉन ट्रेड इनकम ऑफ 14,400, नॉन ट्रेड इनकम ऑफ 14,400 बिफोर टैक्स। नॉन ट्रेड इनकम को क्या करना है, माइनस करना है। नॉन ट्रेड इनकम को क्या करना है, माइनस करना है। नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड जिधर जहां भी है वहां से उसको हटाना है। सो नॉन ट्रेड इनकम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूडेड है तो उसको वहां से हटाना है। Non-trade income of 14,400 before tax is included in the amount of profit for 2020-21 only.
सिर्फ 2021 ओनली, सिर्फ 2021 ओनली का मतलब क्या? सिर्फ 2020-21 के प्रॉफिट में से नॉन ट्रेड इनकम 14,400 को माइनस करना है। ठीक है, 2020-21 ओनली 14,400 को सिर्फ इधर से माइनस करना है, लेस नॉन ट्रेड इनकम। जैसे पिछला सम में अपने क्या किए थे याद करो, सुनो ना, जैसे पिछले सम में अपने क्या किए थे याद करो। अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था 5 साल का, तो 5 साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एवरेज निकाल लिए थे। फिर एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस किए थे नॉन ट्रेड इनकम और एड बैक किए थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसका रीजन मैंने क्या बताया था? बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इनकम सभी साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। ये 5 साल के प्रॉफिट में नॉन ट्रेड इनकम इंक्लूडेड है और डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है। इसलिए पहले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, एक सिंगल फिगर में मिल जाएगा, एक सिंगल फिगर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद नॉन ट्रेड इनकम को माइनस करो, डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड करो, बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट हर साल इन 5 साल के प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है और नॉन ट्रेड इनकम ये 5 साल के प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है। तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एवरेज निकालो, 5 साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एवरेज निकालो, फिर वहां से नॉन ट्रेड इनकम को माइनस करो, इंटरेस्ट और डिबेंचर्स को ऐड करो। बट ये वाले सब में सर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद, ये वाले सब में आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद ऐसा क्यों नहीं किया? ये वाले सब में आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज इसमें नॉन ट्रेड इनकम खाली 2020-21 के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। इसमें ये जो ईयर का डेटा है ना वो डिफरेंट है। पिछले वाले सम में नॉन ट्रेड इनकम और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हर साल के प्रॉफिट में एडलेस किया हुआ था। ये वाले सम में नॉन ट्रेड इनकम खाली 2020-21 के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। ये वाले सम में जो ईयरली डेटा है ना दैट इज डिफरेंट। ये वाले सम में जो ईयरली डेटा है दैट इज डिफरेंट। ये वाले सम में जो ईयरली डेटा है दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट द सेम फॉर ईच ईयर। 2020-21 में ही खाली नॉन ट्रेड इनकम लेस करना है। आई बात समझ में? अब ये सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद अपने क्या करेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। फिर लेस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 93,200। देख लो एक बार मैंने कैलकुलेशन सही किया है ना? अब आ जाएगा adjusted profit after tax।
फिर नेक्स्ट अपने क्या निकालेंगे, एवरेज करेंगे, एवरेज adjusted प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? ट्रेंड अब नजर आ रहा है। एडजस्टमेंट्स करने के बाद देखो ट्रेंड नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ ट्रेंड नजर आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। बट क्वेश्चन ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था, टेक सिंपल एवरेज। तो विल टेक सिंपल एवरेज। 139,800 प्लस 169,560 प्लस 173,400 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है, एक गलती मैंने की है। मैंने ये ऊपर का 84,000 को भी ले लिया है। एक गलती मैंने कर दी है, गलती के लिए मुआफी। मैंने आप लोग से पूछा भी था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो बताओ। मैंने ऊपर का 84,000 को भी फॉर्मूला में, यही होता है एक्सेल यूज करने का डिसएडवांटेज। इधर में 59,600 माइनस होगा, इधर में 69,840 माइनस होगा, अब आई थिंक सही आया है। करेक्शंस कर लो। आप लोग को भी बोलना चाहिए ना कि सर आपने ऊपर का भी ऐड कर लिया, तो मैंने ऊपर में फिर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मैं तो समझाने के धुन में रहता हूं, मेरे को समझाना है समझाना है, बस वही समझाने के धुन में सिली मिस्टेक हो जाता है। करेक्शंस कर लो। एवरेज एडजस्टेड पैट मिल गया, 1,01,520 मिल गया। नेक्स्ट अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक है कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 6,50,000, दूसरा इज एवरेज प्रॉफिट 1,01,520। 1,01,520 इज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फेयर रिटर्न on capital employed in this type of business is estimated at 12%। यानी दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस टाइप के बिजनेस में फेयर रिटर्न यानी नॉर्मली लोग 12% कमा लेते हैं। नॉर्मली लोग 12% कमा लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न is equal to 12%। NRR is equal to 12%। ठीक है। आपने खुद के बिजनेस में कितना लगाया हुआ है? कंपनी ने खुद के बिजनेस में कितना लगाया हुआ है? 6,50,000।
6,50,000। अगर कंपनी ने खुद के बिजनेस में 6,50,000 लगाया हुआ है, अगर कंपनी का खुद का बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000 है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस टाइप के बिजनेस का 12% है, देन व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? मतलब कंपनी को कितना कमा लेना चाहिए? अगर कंपनी ने अपने बिजनेस में 6,50,000 लगाया है एंड 12% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कंपनी को खुद के बिजनेस में जनरली जनरली यानी नॉर्मली नॉर्मली कितना कमा लेना चाहिए? 78,000। 78,000 कमा लेना चाहिए, यस और नो? बट कंपनी कमा कितना रहा है? 1,01,520। कंपनी ज्यादा कमा रहा है एंड दैट ज्यादा कमाई इज सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज 1,01,520 minus 78,000। कितना आ रहा है? 23,520। गुडविल क्या है? इट इज 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सिंपली अपने क्या करेंगे? 23,520 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल इज इक्वल टू 4 years परचेज। सो 23,520 को अपने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ रहा है? 94।